Good evening, everyone. So first of all, I would like to apologize each and every one of you that yesterday I was not able to upload my video, and today I am again back with another topic on current affairs, most related to defense. Now, there were a few questions in the video in comment section that try to speak in Hindi, but first of all, you need to understand that the purpose for which I am making the video is for the defense candidates. Okay, and especially for ND and CNDS candidates. Now, in both these exams, you need to have a knowledge of English, because even though if you clear your exam with Hindi background, then there will be an SSB interview, and in that interview you have to deal with English questions. The interview will be in English only. Or there will be a good impression if you try to speak in English. So you need to focus on English speaking. ठीक है, आराम से बताऊंगा, सारा बताऊंगा, लेकिन आपको इंग्लिश में भी सुनना पड़ेगा. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर्स. So our first current affair of the day will be Indian Army launches Project Zorawar. Now, what is the meaning of the Project Zorawar? So, Project Zorawar is an fight vehicle Indian light tank. Okay, now where are these established? So these are launched, or these light tanks are manufactured for the purpose of combating or getting battle ready with China at the LAC border. Now, what is LAC? So, LAC is the line of actual control. If you have seen the Indian map, okay, so this portion, okay, now pardon me for my drawing. This is the international boundary, but what happened in the 1948 Kabaili war? Pakistan illegally occupied our Gilgit-Baltistan area, which is today known as POK, and this line is known as LOC. Similarly was done by China. Here is the line of LAC, line of actual control. Now, if you might have seen and if you might have heard that in the year 2020 there was an incident on the Galwan river in Galwan Valley, Jammu and Kashmir. So what happened? China attacked our soldiers and entered into our territory. So in order to combat or in order to fight in that terrain means that वो जो हिस्सा है, वो जो एरिया है, वो कैसा एरिया है? माउंटेनियस एरिया है, रगड एरिया है. तो ऐसे एरियाज में, हिली एरियाज में आप भारी जो मेन इंडिया का जो मेन बैटल टैंक है, दैट इज द अर्जुना टैंक, यू कांट टेक दैट टैंक ओवर देयर. सो यू नीड लाइट टैंक्स, एंड दो द प्रोजेक्ट विच इज डीलिंग विद लाइट टैंक इज नॉन एज जोरावर. Okay, so the project Zorawar is said to do light tanks which are built for especially for LAC area. Okay, now our second current affair of the day will be
regarding an exercise between the now the second current affair of the day will be 7th edition of exercise Sangam held. Now this exercise Sangam takes place between Indian Navy Special Forces, that is Marcos, and US Navy SEALs. ओके यानी इंडियन नेवी के मार्कोस एंड यूएस के जो मरीन कमांडोज होते हैं जिनको नेवी सील्स बोला जाता है. नेवी सील्स वही सेम लोग हैं जिन्होंने 2011 के अंदर 2 अप्रैल 2011 को ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान के अंदर मारा था. ठीक है. सो बिटवीन दीज एंड दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडोज. मार्कोस आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट कमांडो हु हैव इवन डिफीटेड नेवी सील्स. यानी कंपटीशन हुआ था जिस कंपटीशन के अंदर भारत के मरीन कमांडोज ने मार्कोस ने नेवी सील्स को भी हरा दिया था. ओके. सो देयर इज एन एक्सरसाइज बिटवीन बोथ दीज स्पेशल फोर्सेस एंड द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज संगम. ओके. नाउ थर्ड, now the third current affair will be very important because it is for the first time that Indian Air Force and Japanese Air Force are coming together for a bilateral exercise that is Veer Garjan. Dharma Garjan is also an exercise between the armies of Japan and India. So similarly, Agni Garjan exercise is taking place between both these countries. Sorry, Veer Garjan, not Agni. Agni is another variant of this exercise. That means whatever the exercise between India and Japan is happening, there will be a word Garjan. Be it Dharma Garjan, be it Agni Garjan, or be it Veer Garjan. So Veer Garjan is the exercise between Indian Air Force and the Japanese Air Force. It is for the first time that the exercise is happening. So this will be very important current affair. Okay. Our second will be now, there is a thing which makes India a very powerful country, and that thing is that India is having intercontinental ballistic missiles, and one of the finest also. So, India conducted successful night launch of Agni 5 missiles. Now, India conducted successful night launch of Agni 5 missiles. Now, these Agni 5 missiles are one of the finest nuclear capable missiles. They can carry heavy payload, and these are intercontinental ballistic missiles. What is the meaning of intercontinental? That suppose this is the entire globe. This is the entire globe. Here is India, and suppose here is America. This is China. This point here. If you want to strike from here to here, it will be more than 5,000 kilometers. But our Agni missiles can cover more than 5,000 kilometers. That means we can
hit any part of China whenever we want with these missiles. Okay, now a few things about Agni missiles. Firstly, these are surface to surface missiles. Now, what is the meaning of surface to surface missiles? That means they are either launched from the sea or from land. Okay, they are either launched from the sea or the land, and they hit the target on sea or land. Surface to surface. So these are surface to surface missiles. Okay, and these are also guided missiles, that they will hit the target with a pinpoint accuracy. Okay, क्योंकि हम उसको गाइड करके भेजेंगे. Okay, now another thing, the range is more than 5,100 kilometer या फिर 5,000 plus kilometers. This will be the range. Now, before we go into certain other defense readiness, there is a news. Okay, and it might be very important. Okay, and that is about INCOVAC. Now, what is INCOVAC? So, INCOVAC is the first Central Drug Control Organization approved intranasal vaccine for COVID-19. Okay, now we don't have to get shots. मतलब हमें कोविड से बचने के लिए क्या नहीं लगाने पड़ेंगे, टीके नहीं लगवाने पड़ेंगे. हम सिर्फ क्या कर, जैसे हम आप लोगों ने देखा हो ना, काफी लोग वो जब नाक बंद हो जाता है तब क्या यूज करते हैं, आप नेजल स्प्रे यूज करते हैं. तो सिमिलरली यू कैन यूज दिस नेजल स्प्रे टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर कोविड. ओके, okay. Oh, now another news. Twelfth edition of Agni Warrior. It is warrior, not warrior. Okay, Agni Warrior. Bilateral exercise held between Indian and Singapore Army. Okay, so 12th edition of Agni Warrior bilateral exercise held between Indian and Singapore Army. Now, there's another country, Kazakhstan. Where is Kazakhstan located?
So Kazakhstan is a Central Asian country. Now there are 5 nations in the Central Asia, just above Afghanistan. There will be 5 nations: Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Kazakhstan got separated from Russia, erstwhile USSR, in 1991. यानी कि इस देश की स्थापना या इस देश को आजादी कब मिली, या फिर ये देश कब बना था? 1991 के अंदर। किससे अलग होकर के? उस समय के यूएसएसआर से, आज का जो मॉडर्न रशिया है। ठीक है ना, रशिया इतना बड़ा देश था 1991 से पहले कि इसके अंदर से 15 नए देश निकले। इवन जो आज कंट्री है रशिया एंड यूक्रेन, जो लड़ाई के ऊपर है, यूक्रेन भी एक समय पर किसका हिस्सा था? रशिया का हिस्सा था। सो कजाकिस्तान और इंडियन आर्मी कजाकिस्तान और जो आपका इंडिया है, ये दोनों की दोनों कहां पर बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं? मेघालय। मेघालय में भी कहां? उमरोई। ओके, दिस कंट्रीज आर हैविंग द जॉइंट एक्सरसाइज एट उमरोई मेघालय, विच इज नोन एज काज हिंद। नाउ India and Nepal held joint exercise सूर्य किरण। एडिशन कौन सा था? 16th। ओके, सो इंडिया एंड नेपाल हैव जॉइंट एक्सरसाइज which is known as सूर्य किरण। और कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन था। So with this we come to the end of the today's video. Tomorrow we will back with certain other defense news. Now you might be thinking कि ये तो बहुत कम दिया जा रहा है या फिर ऐसा ही हमें बताया जा रहा है। See, अभी जो टाइम बचा आपके पास वो बहुत ही थोड़ा है। What we are trying that we are just taking a few इंपॉर्टेंट, वरना करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं होती है। आप जो भी कोई किताब खोलेंगे, आप चाहे विजन का आप करंट का मटेरियल उठाइए, आप चाहे प्रत्योग दर्पण उठाइए, आप चाहे कोई इंस्टा वगैरह पे आप कोई पेज फॉलो करते हैं वहाँ का करंट अफेयर उठाएंगे, आप किसी डिफेंस साइट का जैसे कि प्रेप हुआ, एसएसबी क्रैक मेनिया हुआ, बालनोई का हुआ, इनका अगर मटेरियल उठाएंगे वहाँ पे आपको अलग अलग करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, अब इतना सब कुछ आप इतने कम समय में, 1 महीने से कम बचा है, आपको अपने और सब्जेक्ट्स भी करने हैं, आपको मॉक भी करने होंगे। एंड द मेन थिंग टू क्रैक द एनडीए एग्जाम इज ट्राई टू डू मॉक एक्सरसाइजेस। ठीक है, और दूसरा मैं आज आपको सबसे खास बता दूं, आपका जो 400 नंबर वाला बचा है, नाउ देयर इज अ कैटेगरी, देयर इज अ क्राइटेरिया दैट यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 25% इन ईच सब्जेक्ट। यानी हर कोई भी एग्जाम आपका होगा, यानी अगर मान लो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपकी इकोनॉमी से आए, तो उन 4 में से आपको 1 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उस समय में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हम क्या करते हैं, उन टॉपिक्स को उठाते हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं, अगर मेरी माने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैंने 3 से 4 एनडीए के एग्जामिनेशंस दिए हैं और उसके अलावा सीडीएस के एग्जामिनेशन दिए हैं, मैंने एसएसबी इंटरव्यूज दिए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि कहाँ से आता है। सो अगर हम पॉलिटी की बात करें, जो कि एक सबसे बड़े, इस एग्जाम में अगर कोई पेपर है या फिर कोई क्वेश्चन का हिस्सा है जो कि मैथ्स इंग्लिश के बाद में सबसे बड़ा आता है, देन दैट बिलोंग्स टू पॉलिटी। ठीक है, इसके आराम से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे मेन हमारे लिए क्या बन जाता है, एक तो प्रेम्बल,
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले आता है, प्रेम्बल, उसके बाद में सबसे मेन जो आते हैं दोज आर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि आपके आर्टिकल 12 से लेकर के 35, इसमें भी आपके 14 टू लेकर 32 तक ये क्या आपके फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन 12 से 35 क्यों? क्योंकि आप इनके बगैर वो अधूरा है। आर्टिकल 12 आपको क्या बताता है, स्टेट क्या होता है। आर्टिकल 13 क्या बताता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको वॉइड यानी कि नलीफाई कर सकता है। आर्टिकल 14 कहां से शुरू होता है, राइट टू इक्वालिटी से। आर्टिकल फिर वो 18 तक जाता है, फिर 19 राइट टू फ्रीडम, 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 25 टू 28 राइट टू रिलीजन, 29 एंड 30 जो कि इंक्लूसिवली माइनॉरिटी राइट है, लेकिन वो किसके बारे में बोलते हैं, राइट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऐसे सेक्शंस आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आएगा वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि किसकी कमेटी पे ये कब जोड़े गए थे, कब बने थे और किसकी कमेटी थी। सो दीज आर बेस्ड ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये आदेश दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये रिकमेंडेशन दिया कि आदेश दिया था, रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा जाए। इनिशियली 10 ही थे लेकिन गवर्नमेंट ने 11 कर दिए। ओके, ये जस्टिसेबल है कि नहीं है, इन पे हम न्याय संगत है कि नहीं, क्या हमें इनके अगर मान लो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कोई नहीं मान रहा है या फिर हमारा हनन होता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते, नहीं जा सकते। ये इंसान के स्वयं विवेक के ऊपर होती है कि वो करे तो करे, ना करे। ठीक, करेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद ठीक है, उसके अलावा जो बच जाता है दैट इज पार्लियामेंट। नाउ दीज आर अ फ्यू टॉपिक्स या दीज आर अ फ्यू लेसन्स विच यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन इनमें से जरूर आएंगे। ठीक है, सेम गोज विद हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपका जो 1900 से 1947 तक का जो पीरियड है ये मेन हो जाता है, जिसमें हमारी कितने फ्रीडम मूवमेंट्स हुए, जिसमें आपका स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद में आपके पैक्ट्स हुए, लखनऊ पैक्ट 1916, पूना पैक्ट 1932। ठीक है ना, ऐसे कुछ पैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा क्या आएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें कौन कौन थे और कौन सा ऐसा ओनली व्यक्ति था जिसने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी, ज्वाइन की थी लंदन के अंदर। दैट वाज पर्सन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको करने होते हैं। देन कम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में यू नीड टू नो अबाउट इंडिया की नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर जो नदियां हैं तो कौन सी नदी यहां से शुरू हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है, यानी ऐसे नहीं कि वहां से लंबी नहीं, यहां पे बीच में कौन कौन सी आएंगी। सो आपको कौन सी नदी कहां पे वो सब पता होना चाहिए। सबसे ऊपर कौन सी, फिर उसके बाद में कौन कौन सी आती है, सबसे लास्ट में कौन सी है वो पता होना चाहिए। माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी कहाँ है वो पता होना चाहिए। भारत में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जंगल है वो पता होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट आपकी ज्योग्राफी की सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, 9th एंड 11th क्लास की ज्योग्राफी। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको एक दिन इसका टॉपिक बहुत ही क्रक्स में 2 क्लास के अंदर अंदर आपको पूरी ज्योग्राफी जो मेन है, जो जो मतलब जहां से मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाकी इससे बाहर शायद ही इनसे बाहर आएगा, लेकिन अगर आपने इतना भी कर लिया तो ये है कि आप इन सब्जेक्ट्स में फेल नहीं होंगे और आप आपका जो सब्जेक्ट होगा, बीट केमिस्ट्री, बीट फिजिक्स, बीट मैथमेटिक्स, बीट बायोलॉजी, ठीक है ना, उनके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड वी विल सी यू टुमारो।